So these are the variables that I have discussed before in the previous slide, slide number 4. I have discussed them in slide number 4. I'm going to read them again. With that, what is threshold dose? It is the minimum dose that produces the desired effect. What is effective dose or ceiling dose? It is the maximal dose that produces the maximum effect. We can call it ED100. Maximum response or ceiling effect is the maximum response of a drug that is being produced by a drug under specific set of conditions. We can write it as Emax. And median effective dose or ED50 or effective dose 50 is a dose that produces half of the maximum response. We write it as 50% or ED50. The second type of dose response curve is Quantel dose response or all or none phenomena. It means the all or none phenomena means that on increasing the dose of drug, the effect will either produce or it will not produce. Now this relationship uh, is seen with certain type of responses, that only certain type of responses follow this all or none phenomena. For example, all or none phenomena is can be seen in hypnosis and death, that either death will occur or hypnosis will occur, right? So quantal dose relationship is always seen in a population. It is basically a population observation, and it is because that assumption is made, and the assumption is what is that assumption? The assumption is that individual responds to a maximal possible or not at all, that a single individual will either respond to that particular drug or will not respond to that drug, and we will see this effect as a whole in a set of collective people, and we call those set of collective people a population. So the graph of quantal dose relationship does not show the intensity of the effect. It is not showing the intensity, that what is the intensity of the effect, but it is showing the frequency, the occurrence of that event, that with which dose produces the all or none phenomena. In quantal dose response, the log dose response curve is sigmoidal in nature. This sigmoidal curve has relatively linear portion. This linear portion varies between 16 to 84%, but it can be varied. But maximally, this variation is between to 16 per 84%. It is the linear portion, and this portion is used to determine the slope of that curve. A small portion of the population at the left and the right side of the curves respond to low and high doses, and the people who are responding to those low and high doses, they basically form a group which is called hyperreactive group or a hyporeactive group. So if a drug is producing its usual effect at a very low dose, the individual is said to be hyperactive, or we can also call it hypersensitive. And if the same response is produced by the drug at an unusual large dose, the individual is said to be hyperreactive or hyposensitive. So we are going to make this relationship linear, and to make it linear, responses are converted into some units which we call as probability units. Probability means chances of occurring of anything. So these probability units are called probits. यहाँ पे फिर मैं समझाने के लिए आपको उर्दू वर्जन दूंगा इस फिगर के अंदर, जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया है। ये अब आपके पास सामने दो फिगर्स हैं, ए और बी। लेफ़्ट साइड पे ए और राइट साइड पे बी। सो ये बेसिकली क्वांटल डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप की फिगर है, जहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस पे लॉग डोज है। हम फिगर ए की बात कर रहे हैं जो कि लेफ़्ट साइड पे है। तो और जो वाई एक्सिस है वहाँ पे हमारे पास परसेंटेज ऑफ मोर्टेलिटी है कि कितने परसेंट डेथ्स हो रही हैं। सो ऑल और नॉन फिनोमिना पहले नंबर पे, तो इस बात को कंफर्म कर लें कि ऑल और नॉन फिनोमिना का मतलब है कि या तो रिस्पांस होगा या नहीं होगा। जैसे कि मैंने बताया कि या डेथ होगी या हिप्नोसिस होगी, एक ही काम होगा। ये नहीं हो सकता कि हम दोनों काम करें कि जी आहिस्ता आहिस्ता डेथ हो रही है। आइदर हिप्नोसिस विल अकर और डेथ विल अकर। इट इज़ ऑल और नॉन फिनोमिना। सो इट मीन्स कि एक पर्टिकुलर डोज ऑफ ड्रग के ऊपर डेथ होगी या नहीं होगी, या लिथैलिटी आएगी या नहीं आएगी। यहाँ पे हम मोर्टेलिटी की बात कर रहे हैं तो इसलिए मैं डेथ का जिक्र कर रहा हूँ।
सो लॉग डोज हमारे पास एक्स एक्सिस पे और परसेंटेज ऑफ मोर्टेलिटी हमारे पास वाई एक्सिस पे। यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो मैंने जो जिक्र किया 16 to 84% वाला सिग्मोइडल कर्व का। देखें सिग्मोइडल कर्व का मैंने पहले भी जिक्र किया है। सिग्मोइडल कर्व का दरमियान वाला हिस्सा देखिए जहाँ पे स्लोप लिखा हुआ है, ये वो पोर्शन होता है सिग्मोइडल कर्व का जो कि बेसिकली लीनियर होता है। इसके ऊपर वाला पोर्शन जहाँ पे आपको हाइपर रिएक्टिव लिखा हुआ नजर आ रहा है और इसका नीचे वाला पोर्शन जहाँ पे आपको हाइपर रिएक्टिव लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये पोर्शंस ओमिट कर दिए जाते हैं जब हम दो कर्व्स को कंपेयर कर रहे होते हैं आपस में जहाँ पे हमने लॉग डोज लिया होता है। क्यों कर दिया जाता है? बिकॉज जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो फॉल करती है बिटवीन 16 to 84%, ये जहाँ पे स्लोप लिखा हुआ है, यानी कि ये हमारे पास एक नॉर्मल पॉपुलेशन को शो करती है। लेकिन अब हर पॉपुलेशन के अंदर ऐसे लोग भी होते हैं जो कि हाइपर रिएक्टिव होते हैं और ऐसे लोग भी होते हैं जो कि हाइपर रिएक्टिव होते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि कुछ लोग जो होते हैं, बहुत थोड़ी सी पॉपुलेशन जो होती है वो बिहेव करती है एक ड्रग को बहुत जल्दी, और कुछ पॉपुलेशन बिहेव करती है उस ड्रग के अगेंस्ट बहुत स्लो। यानी कि कुछ लोगों के अंदर उस पर्टिकुलर ड्रग का जो डोज होगी वो ज़्यादा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी और कुछ लोगों के अंदर वही जो डोज होगी वो कम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही होगी। तो इनको हम हाइपर रिएक्टिव और हाइपर रिएक्टिव कह देते हैं। तो बेसिकली इसको बताने का मकसद उर्दू में ये था कि मैं आपको ये समझा सकूं कि हम दो डिफरेंट कर्व्स को कंपेयर उस वक्त ही करेंगे जब वो एक तरह की होंगी, और वो हम करते हैं इस तरह के सिग्मोइडल कर्व का लीनियर पोर्शन लेके जो कि दरमियान वाला पोर्शन होता है। इसमें से भी ऊपर वाला हाइपर रिएक्टिव और हाइपर रिएक्टिव वाला जो पोर्शन होता है इसको ओमिट कर दिया जाता है। अच्छा, अब हम काउंटर डोज की बात कर लें। इसी जब डॉग डोज को हम कन्वर्ट करते हैं एक और स्टैटिस्टिकल यूनिट के अंदर, उनको हम कह देते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब है किसी चीज़ के होने की चांसेस। तो यानी कि जब हम इसमें मोर्टेलिटी को ले रहे हैं, उस परसेंटेज ऑफ मोर्टेलिटी को हमने कन्वर्ट कर दिया प्रोबेबिलिटी यूनिट्स में, और उनको हम नाम देते हैं प्रॉबिट यूनिट्स का, कि कितनी डेथ्स हुई, 3 4 5 6 7 8। इस तरह हमारे पास इजीली उसको स्केल करना आसान हो जाता है कि एक्स एक्सिस पे हमारे पास लॉग डोज ही रहती है और वाई एक्सिस पे हम उनको प्रॉबिट्स बना लेते हैं, प्रोबेबिलिटी यूनिट्स बना लेते हैं।